we were doing gratuity. Okay, this gratuity is a social security legislation. Do you know how many types of laws are there? See, आपने act देखा, right? Which are those acts? जल्दी, कौन कौन से acts हैं social security में? हाँ, okay, then okay, and 1961 and the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. Payment of gratuity जो अभी आप पढ़ रहे हैं 1972. But this is a type of labor law. This is just a type. Social security का legislation सिर्फ एक type of labor law होता है. Okay? I'll tell you. अभी gratuity आज हम लोग क्लास में फिनिश कर लेंगे और जो थोड़ा टाइम बचेगा I'll brief you कि labor laws कितने टाइप के होते हैं. So that when you study act, जैसे आपको Industrial Disputes Act 1947 पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में आगे पढ़ना है आपको, तो वो भी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन तो नहीं है, वो कुछ और है, वो रेगुलेटिव लेजिस्लेशन है. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक्ट का पर्पस एक ही नहीं होता है. Now, right. So till now we have done the gratuity. What is gratuity? Gratuity is something which is given to recognize the long stay of meritorious service of a worker in your industry. Initially, it was started as something which was given as bakshish. Okay, कुछ ऐसे टिप की तरह दिया जाता था, and later on, what happened that it started, the workers started claiming it as their right. So in some states, it was operating under the court order. In some states, it was being given on the basis of scheme agreement, and in some as still as bakshish. So there was no uniformity at all. Finally, it was passed by West Bengal government in 1970. State recognition मिलना शुरू हुआ West Bengal से 1970 में, Kerala government से 1971 में. But it was only in 1972 when the central government passed a law stating the Payments of Gratuity Act 1972 that it became a full-fledged, uniformly acceptable law throughout the country. Fine. Since it is passed by central government, so it extends to the whole of India. Before, after the application of Article 370, now it is applicable to even Jammu and Kashmir. Previously, it was not applicable to Jammu and Kashmir. The implementation has been given to appropriate authorities in states. The scope and coverage, it is applicable क्योंकि central government से passed है, इसलिए it is applicable to all ports, plantations, factories, mines, oil fields, schools, trusts, colleges, society, everywhere where at least 10 persons are employed. 10 लोग कम से कम जहां employed है वहां gratuity का act लगता है, और एक बार लग गया तो 10 से कम भी लोग होंगे, still the employer has to give gratuity. Understood? There are certain conditions for gratuity payment in life. आप gratuity एक तरीके का retirement benefit ही है, ठीक है, ओल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट ही है, लेकिन आप इसका पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में. जैसे see 5 years of you've already written this that the eligibility for gratuity payment is 5 years of continuous service. 5 साल कहीं continuous service आप काम कर लेंगे, only then you are eligible for payment of gratuity. But the provision shall not hold true in case of death and disability. अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाते हैं वो, तो gratuity का पेमेंट उससे पहले भी मिल जाएगा. Certain conditions under which gratuity is applicable: superannuation, retirement, voluntary retirement, voluntary retirement, resignation, death, disablement, and any kind of chronic disease is covered under that. So, God forbid if somebody encounters any chronic disease in their life, they can make use of the gratuity payment. Understood? Then, since it is provided completely by employer and there is no scope of contribution at all, you don't have to contribute anything. This is completely your right. The employer has to give you money or gratuity. So still there are certain conditions in the act where the employer has the right to forfeit your gratuity payment. आपका पैसा या तो completely या partial तौर पे रोका जा सकता है. किस तरीके से? जैसे कि in case of any major misconduct,
आपने मिसकंडक्ट किया है, कोई बदतमीजी की है जो बड़ी बदतमीजी है, जिसमें कि एम्प्लॉयर इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज, this is one condition. The other is moral turpitude. Morally or ethically you have worked against the company organization, which as an employee you shouldn't have. Then third is damage to employees property. You understand this? We are not supposed to damage any employees property. जैसे कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है कि हमको अपने देश का सरकारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बस पे बैठे बस की सीट खराब कर दी, कहीं आर्किटेक्चर है, कहीं हेरिटेज है, वहाँ दीवार पे लिख दी, ये सब चीजें अवॉइड क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। You as a responsible citizen, we should do this. Similarly, as a responsible employee, we have this duty that you do not damage employer's property in any which way. And next, in case of riotous or violent behavior, which means that you should not instigate people against management. आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का दंगा फसाद या कुछ भी ऐसा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्ट्रप्शन करवाता हो, वैसी कोई चीज आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वैसे करने के केसेस में आप पकड़े जाते हैं, the employer has the right to forfeit either completely or partially your gratuity payments. Fine. Next, write down. यहाँ तक हो गया था। Write down rate and amount of gratuity. Rate, RATE, rate and amount of gratuity. Rate and amount of gratuity. Written rate and amount of gratuity. Now listen. आपने ये देखा है माइंस खान वगैरह के बारे में सुना है? कुछ खान ऐसे होते हैं जहाँ पानी भर जाता है और वहाँ काम नहीं होता है, ओपन कास्ट माइन जिसको कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो साल भर काम नहीं करते, राइट। कुछ बिजनेस साल भर काम करते हैं क्या? विंटर स्पोर्ट्स साल भर काम करता है? नहीं करता है। कब करता है? जब वहाँ बर्फ जमा हो जाती है, स्कीइंग होता है और भी अलग अलग टाइप की विंटर एक्टिविटी होती है। You need approximately like approx 7 months that can be considered. So in the nutshell, what I'm trying to say is that there are two kinds of organization. One is known as perennial organization and the other one is known as seasonal organization. Understood? Two kinds of organization. One is perennial organization and the other one is seasonal organization. What is a perennial organization? The organization that works for 12 months in a year is known as perennial organization. 12 महीने यहाँ काम होते हैं, ईटा का फैक्ट्री, सीमेंट का फैक्ट्री, सब में काम होता रहता है। But seasonal organizations are those organizations where the work is not carried out for complete 12 months, rather for 7 months or less than 7 months. मतलब साल भर नहीं होता है। तो ग्रेच्युटी का पेमेंट कैसे दिया जाता है? हम ग्रेच्युटी की बात कर रहे हैं, तो कैसे पैसा मिलता है? क्या कैलकुलेशन ये है कि ग्रेच्युटी 365 दिन के लिए तो सैलरी दी जाती है, मिलती है ना? 365 दिनों की सैलरी दी जाती है। ग्रेच्युटी में 15 दिन की और सैलरी दी जाती है, ठीक है। ये कीवर्ड है, यही चीज है एक्ट में, ये याद रखिएगा आप कि ग्रेच्युटी में 15 दिन की और सैलरी दी जाती है, 15 डेज की सैलरी और दी जाती है एज अ रिवॉर्ड, एज ग्रेच्युटी पेमेंट, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, 15 दिन की सैलरी दी जाती है तो 15 दिन एक्स्ट्रा, मतलब जो साल कंप्लीट किया उससे 15 दिन और, तो 15 दिन और निकालने के लिए एक दिन का सैलरी निकालना होगा ना, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 15 से, और कितने सालों तक लगातार सर्विस की जाती है? राइट,
5 years of continuous service के बाद आप छोड़ना शुरू कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो साल भर काम करते हैं 15 दिन एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, और सीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो साल भर काम नहीं करते हैं उनको 60 दिन की सैलरी दी जाती है। समझ आई बात? 7 डेज एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है ग्रेचुइटी पेमेंट में। पर 7 में रिपीट को बात की है कि 1 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी, उसी से आप 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसी से नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस करिएगा, तो पूरा जोड़ करके ग्रेचुइटी निकलेगा ना। देखिए, डेली वेज वर्कर्स का क्या मतलब हुआ? तो डेली बेसिस पे काम करते हैं। दिस जनरली हैपेंस इन प्रोडक्शन एरिया, जहां पे कि हर दिन का वेज फिक्स्ड नहीं होता है। ज्यादा अच्छा काम किया, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया तो सैलरी ज्यादा ही होती है और कम भी होती है। अनलाइक पीपल हु आर ऑन मंथली बेसिस, जो मंथली बेसिस पे है उनको क्या होता है, उनकी तो सैलरी फिक्स्ड है, पर जो डेली वेज पे है उनका वेरिएबल होता है। तो इनकी कैसे निकलेगी? जब डेली वेज पे डेली अलग अलग है तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी, ठीक है। अब मान लो कि कोई ज्वाइन किया था 1990 में और रिटायर हो रहा है 2025 में, 2030 में, ठीक है, 40 साल सर्विस दिया, तो अब तो 1990 का वेज जोड़ोगे तो कुछ पैसा मिलेगा। क्या पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उस समय का सोच लो, 40 साल पहले, 40 साल पहले 500 रुपए अभी के कितने रुपए के बराबर होगा? तो वो तो वैल्यू घट गया ना, इसलिए रीसेंट वेज को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ सैलरी, लास्ट 3 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एक्चुअल नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, मतलब कितना दिन काम हुआ, संडे को हटा दिया जाता है, कितना दिन एक्चुअल में काम हुआ, इसको निकालिएगा 3 मंथ की सैलरी और पिछले 3 महीने में नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज में एक दिन का वेज निकलेगा कि नहीं? हां, 3 मंथ्स में हां, ऑब्वियसली एक दिन का सैलरी निकलेगा, ठीक। ये हो गया डेली वेज वर्कर्स की बात। अब आइए मंथली वेज वर्कर्स की बात। मंथली वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी फिक्स्ड होती है, तो उनका जो लास्ट सैलरी ड्रॉन पिछले 1 महीने की सैलरी, पिछला वाला महीना डिवाइडेड बाय 26। Why is this 26? और संडे 6 ठीक है। ये इसका एक दिन का सैलरी निकल गया, ये इसका एक दिन का सैलरी निकला ना। कितने दिन का सैलरी दिया जाता है एक्स्ट्रा? 15 डेज, एक दिन का सैलरी, तो एक साल में कितना देना है उसको? इतना एक्स्ट्रा 15। मान लो 10 साल काम किया, 10 इयर्स, इतना पैसा आएगा, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? राइट डाउन। In case of perennial organizations, right? I'm spelling perennial आप लोग पढ़े होंगे 40 वाक्य में स्कूल में, perennial plants. In case of perennial organization, the employers shall pay In case of perennial organization, the employers shall pay 15 days of wage, 15 days of wage for every completed year of service. Completed year of service. Now hold on 1 minute. Okay. For every completed year of service. मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय ने
किसी एम्प्लॉय ने 27 साल काम किया, 27 years and 7 months 5 days, कितना हो रहा है उसका रिटायरमेंट का दिन। किसी ने 22 साल 3 months काम किया। जब ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है तो 6 महीने से ज्यादा अगर टेन्योर हो रहा है, सर्विस हो रही है, उसको हम एक फुल ईयर कंसिडर करते हैं। ये कितना साल हो जाएगा? 28 साल, 28 years। ये कितना हो जाएगा? 22 years। 6 महीने से कम है तो उसको हम ओमिट कर देंगे, वो मंथ हटा देंगे और फिर उसको 22 साल ही रखेंगे। ठीक, देखिए, at the time of calculation of length of service, at the time of calculation of length of service, the period 6 months or more, the period 6 months or more shall be considered as one full year, shall be considered as one full year, and the time less than 6 months, and the time less than 6 months will be omitted, तो छोड़ दिया जाता है, and the time less than 6 months will be omitted. The employer shall calculate gratuity. The employer shall calculate gratuity on the basis of last wages of the employees. On the basis of last wages of the employees. Done? ये लिख लीजिए आप, डेली वेज, अच्छा बेस्ड है ना, राइट डाउन डेली वेज, ये लिख लीजिए, डेली वेज इज, पूरा कॉपी कर लीजिएगा, डेली वेज और मंथली वेज राइट डाउन। हम उसको पहले, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपके समझने के लिए, अपना नोट्स को अपने हिसाब से लिखा जाता है। End of those who are not written. Okay. See, when you're studying acts, there has to be एक्ट बनाया, कानून बनाया, पर ऐसा तो नहीं है कि कानून का उल्लंघन नहीं होगा। There could be some employers who would refuse to give gratuity payment, है ना, gratuity देने से मना कर दिए, तब लेबर कहाँ जाए, वर्कर्स कहाँ जाए, एम्प्लॉयज कहाँ जाए। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफिसर्स एक सर्टेन नंबर में, एडिक्वेट नंबर्स में अपॉइंट कर रखे हैं कि ग्रेच्युटी के पेमेंट का सेटलमेंट करने के लिए। किसी ने क्लेम किया, कोई नॉमिनी का प्रॉब्लम हो गया, एम्प्लॉयर देना नहीं चाहता है या गलत दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा है, डेट से दिया जा, जो भी प्रॉब्लम्स आप पेमेंट के संदर्भ में समझ सकते हैं, वो सारी चीजों को हिसाब से सहूलियत से चलाने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटीज अपॉइंट होती है। राइट डाउन, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसका हेड ऑफिस स्टैटिस्टिक्स रहता है। देखो, sometimes there are circle officers also who are appointed with the, depend करता है कि स्टेट में किसको ये चीज दिया गया है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट साइन करने का ये होता है ना, उसी तरीके से। राइट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, the appropriate government shall appoint
The appropriate government shall appoint controlling authority in adequate numbers who shall work related to gratuity payment disposal of claims or complaints comma, distribution of gratuity, comma, recovery of gratuity, etc. Recovery of gratuity, etc. Okay. This much you have to study in. This much you should know about gratuity. Understood? This is you're done with gratuity. This much you should know about gratuity. There are more things in the act also, like declaration of nominee, distribution of gratuity, all these things, but you don't need to dig into too much of details. With this, we complete gratuity payment. Okay, the Payment of Gratuity Act 1972. Now, in this class, in the next act, I'll start in another class. This act, although I have explained you this, I remember I explained you the types of labor laws, but still I think that many of you are confused about that, so I'll explain it again. Okay? Labor laws. ताकि आप जब बाद में अपना पढ़ें, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आपको पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में है, वर्कमेन कॉम्पेंसेशन आपको ऐसे भी पढ़ना है डिटेल्स में, तो इसका कंफ्यूजन हो। पेरोल नहीं बनाया जा सकता है अगर आपको एक्ट का पता नहीं हो तो। You just write down, make a chart. I think you can remember when I taught you this in one class. That's true. क्या मार्कशीट होने लगी है तुरंत? लेबर लॉज, हर लॉ एक तरीके का नहीं होता है. There is a reason why a certain law is enacted and enforced. Okay, not every law is for the same purpose. So, Right of the same. I'll dictate you right. Why is a labor law formed? Tell me, Adarsh. आपको क्या लगता है? आप बताइए, सोच के बताइए. ऐसे कोई रिटन पैराग्राफ नहीं पूछ रहे तुमसे. लेबर लॉस क्यों बनाया जाता है? ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, एनीवन एल्स दिस साइड?
कुछ भी जो समझ आता है वही बोलो, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। क्यों बनता है लेबर लॉस, बताइए आपको क्यों नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? Discrimination of men and women. गुड, ये भी एक क्लास है, वेरी नाइस। For their security. और For their security. Security. फॉर द सिक्योरिटी, ठीक है। आप लोग बताइए, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। बताओ जो आसपास देखते हो वही बताओ, टेल मी। वर्किंग कंडीशंस और For their safety. फॉर देयर सेफ्टी, हाँ देखिए, ठीक है। For their employment. फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट के लिए तो है ही, लेबर लॉ का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जैसे सेफ्टी किसी ने बोला, किसी ने वेलफेयर बोला, किसी ने वर्किंग कंडीशंस, किसी ने वेजेस। तो Mentally harassment. मेंटल हैरेसमेंट, हाँ, अगर वर्क प्लेस नहीं बना रहे तो और ज्यादा प्रेशर डालने का टाइम से ज्यादा काम कराया जाए। ठीक है, but you don't have to laugh after giving every answer. There's no point laughing after every answer. Is there anything? To maintain proper discipline in class, when I ignore you, you should understand कि 2-3 बार मैम देख ली, मैम छोड़ दी, नहीं बोल रही। But then you people compel me कि नहीं, टोक ही दिया जाए। So labor laws, see, हर लेबर लॉ एक ही पर्पस के लिए नहीं बनता, अलग अलग लॉ को फ्रॉम टाइम एंड अगेन फ्रेम किया गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जरूरत के हिसाब से जब गवर्नमेंट को लगा कि इस चीज की बहुत जरूरत है, अगर लॉ नहीं होगा तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन को नहीं रोका जा सकता है। बेसिकली लेबर लॉज आर फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। अब इकोनॉमिक तो आप लोग सब समझ गए, पैसे से रिलेटेड, हार्म हो गया, चोट लग गई, मर गए, compensation. How can it be helpful in protecting you socially? See, I'll tell you something. There was a case study. This is a case study. 1994 में इंडियन रेलवे के जो ड्राइवर होते हैं, इंडियन रेलवे के ड्राइवर, ठीक है, उनको ड्राइवर ही बोला जाता था, ड्राइवर था उनका पोस्ट में, but they were really offended. उनको ठीक नहीं लगता। वो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स में एक ये भी पॉइंट बोला कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता या उनको दे आर लुक्ड डाउन अपॉन कि ड्राइवर का बेटा है। तो ड्राइवर का मतलब इंडियन रेलवे के ड्राइवर इज अ रेप्यूटेड थिंग। आप बड़े काम करते, हाँ, पढ़े लिखे होते हैं, आप सरकारी नौकरी करें, फिर रिस्पांसिबल नौकरी में हैं, आप उनको पैसा अच्छा मिलता है, एवरीथिंग, ठीक है, ऐसा भी they're doing a respectful work, they're living a respectful life and they're providing their family a respectful thing. लेकिन उन्होंने कहा कि this is often confused with like truck drivers and all, कि ड्राइवर का मतलब सब एक ही कैटेगरी में, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। तो बहुत सोच विचार करके फिर ट्रेड यूनियन ने इस बात को पुट फॉरवर्ड किया गवर्नमेंट को कि हमारा पोस्ट का नॉमेनक्लेचर चेंज कीजिए, ठीक है, चेंज इट, वी डोंट फील हैप्पी अबाउट इट, वी डोंट फील रिस्पेक्टफुल अबाउट इट इन द सोसाइटी। फिर कमेटी बैठी, थोड़ा कंटेम्पलेशन हुआ, 6-7 महीनों के बाद फिर उस चीज को चेंज किया। क्या है अभी? वेरी गुड, रुको पायलट इज द, ये एक बार कभी रिपोर्ट हुआ था इसके लिए, कहीं पैसा इन्वॉल्व है इसमें, किसी पैसे की मांग हुई नहीं, ओनली फॉर सोशल स्टेटस। समाज में तो ये अगर एकजुट नहीं होते, यानी ट्रेड यूनियन नहीं होता, तो ये अपनी बातों को उतनी सक्षमता के साथ नहीं पुट फॉरवर्ड कर पाते सरकार को। एक कोई उठ के बोलता तो ऐसा होता, चेंज होता, नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, व्हेन यू आर प्रोटेक्टिंग देम विद अ लॉ,
देयर आर मेनी फैसेट्स टू इट। समझ आई बात? और जितना आप लोग बोले वो सब सही है। लेबर की एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, टाइम एंड अगेन फिर उस चीज को स्टॉप किया गया, तब जाकर के लेबर लॉ आप देखेंगे ईयर बाय ईयर कि वो जब जैसे जैसे जरूरत महसूस होती गई उस चीज को बनाता गया। जैसे प्रोटेक्टिव लेबर लॉ, अभी आपने जितना कहा, प्रोटेक्टिव लेबर लॉ में हम वर्कर्स को दो तरीके का प्रोटेक्शन दे सकते हैं, एक वर्किंग कंडीशंस और एक वेजेस। वर्किंग कंडीशंस मतलब ये बताइए कि क्या माइंस में जिस तरीके का नेचर ऑफ वर्क होता है फैक्ट्री में वही होता है? प्लांटेशन मतलब समझते हैं आप लोग क्या? हाँ, कौन बोला? बगान, बगान, चाय का बगान, कॉफी का बगान, रबर का प्लांटेशन, आपने देखा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे ढलान होना होता है, प्लस ये सब जिस जगह पे रहता है वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा बारिश होती रहेगी, हर दिन लगभग थोड़ी थोड़ी बारिश होगी। दार्जिलिंग टी प्लांट, आप ये सब देखेंगे, केरला में रबर का प्लांटेशन है, वहाँ पे भी बारिश वगैरह होती रहती है, मुन्नार टी गार्डन है वहाँ पर। तो नेचर ऑफ वर्क अलग अलग होता है ना? नेचर ऑफ वर्क अलग होने की वजह से वहाँ वर्किंग कंडीशंस का भी जो सोच होगा कि किस तरह वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए वो अलग होगा। जैसे अब फैक्ट्री में छाता और रेनकोट चाहिए क्या किसी को काम करने के समय? नहीं चाहिए, पर प्लांटेशन में जो लोग काम करते हैं उनको चाहिए। आप हिल स्टेशन घूमने जाएंगे तो आपको 10 पॉइंट्स में एक पॉइंट वहाँ गाड़ी वाला ले जाकर के दिखा देगा, आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ घूमने आए। पर वहाँ जो रोज काम करता है, every day that labor is going and coming, that is far from the city, तो इसीलिए वहाँ अकोमोडेशन की का स्कोप डाला गया है इस एक्ट में, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं है, माइंस एक्ट में नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग वर्किंग कंडीशंस। पहले वर्किंग कंडीशंस कैसे होता था? ठूस दिया एक रूम में, बिल्कुल वर्कर्स को सड़ सड़ के काम कर रहे हैं, ना लाइट आ रही है, ना प्रॉपर वेंटिलेशन है, ह्यूमिडिटी भी रूम में बहुत ज्यादा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, आपको अगर इस क्लास की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स की है और इस क्लास में अगर 65 स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाए, आपको थोड़ी देर के बाद दिक्कत होगी कि नहीं? और आपको अगर रोज ही उस कंडीशन में बैठना पड़े तो आपको रोज दिक्कत होगी, आप काम कर भी नहीं सकेंगे। और फैक्ट्री में एक और प्रॉब्लम होता है, इट्स नॉट जस्ट योर फिजिकल डिस्कम्फर्ट, एक्सीडेंट का भी चांस बढ़ जाएगा ना। इसीलिए वर्किंग कंडीशंस में प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, जैसे पीने के पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, थूक दान का अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि वर्कर इधर उधर थूक रहे, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्पिटून, थूक दान होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन 90 सेंटीमीटर तक ग्लेज्ड टाइल्स होना चाहिए, क्लीनिंग। ठीक है, फॉर एवरी 250 वर्कर्स देयर शुड बी एन अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, ठंडी में वो ठंडा होना चाहिए, सॉरी गर्मी में वो ठंडा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का वर्किंग कंडीशंस बहुत सारा एक्ट में दिया गया, क्योंकि वर्कर्स को बहुत पिटिएबल वर्किंग कंडीशंस में काम कराया जाता है। इसमें आता है वर्किंग कंडीशंस में द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1961, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1966, द बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट 1961। इस तरीके के एक्ट अलग अलग नेचर ऑफ वर्क से आते हैं। आप बस ये जानिए, थोड़ा एक्सपोजर रखिए इसका। Then you have wages. As per record, it is there कि 60% of the dispute, the matter of dispute between an employer and employee is because of wage. ज्यादातर तो यही इशू होता है, पैसा बढ़ाइए, हमारा बकाया बोनस दीजिए, ये सब चीजें होती है ना। पहले बेच दिया जाता था तो अब महीने की कभी 7 तारीख को दे रहे हैं, कभी 10 को दे रहे हैं, कभी 15 को दे रहे हैं, कभी 25 को दे रहे हैं, कभी पूरा महीना नहीं दे रहे, अगले महीना दे रहे। तो इस तरीके से घर चलाना मुश्किल होता है ना। तो देयर आर एक्ट्स इन वेज, जैसे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट जो न्यूनतम मजदूरी होती है 1948, कि आप अगर किसी को हायर कर रहे हैं माने एम्प्लॉयर, तो उसको जो सरकार की फिक्स की हुई मजदूरी है उतनी तो आपको देनी ही। हाँ, तो बिहार गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरीज में अपने वर्कर्स को डिवाइड किया है, सबका अलग अलग है।
शायद तुम अनस्किल्ड का बता रहे हो। तो वर्कर्स का कैटेगरी है बिहार गवर्नमेंट का अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, सुपरवाइजरी। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। पेज में आया द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, माने सेम कैपेसिटी ऑफ वर्क करवा लिया आदमी से और औरत से, और पैसा किसको ज्यादा दे दिया? आदमी को। ये अभी भी होता है एग्रीकल्चर में, अभी भी ये प्रॉब्लम। तो उसको हटाने के लिए एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 लाया। फिर एक और एक्ट है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। नेक्स्ट आगे रेगुलेटिव, इसमें से एक एक्ट आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है फिफ्थ सेमेस्टर में। रेगुलेटिव का क्या मतलब होता है? रेगुलेट करना। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि जैसे आप अपने आप को एम्प्लॉय मान लीजिए और हम एम्प्लॉय, क्या ये अच्छा नहीं है कि कुछ रिटन हो जिसमें ये लिखा हो आप क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? आपको पता हो कि मैम क्या करेंगी तो सही है और मैम क्या करेंगी तो गलत हो जाएगा, वो मुझे भी पता, मुझे भी मालूम हो कि मैं स्टूडेंट्स मेरा क्या काम है और हम क्या करेंगे जो गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि क्लास डिस्टर्ब करना आपको अलाउड नहीं है, दैट इज रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ यू, आप फिर भी करे जा रहे हैं। और बहुत बार मना करने के बाद भी अगर इफ आई टेक एनी एक्शन, आप ये सोचेंगे ना कि मैम ने तो ज्यादती कर दी एकदम, ऐसी भी क्या बात हो गई, होगा कि नहीं होगा ये चीज? जस्ट एक नॉर्मल साइकोलॉजी से सोच के बताओ, होगा ना? आप ये सोचेंगे कि बहुत अत्याचार कर दिया मैम ने, आई कार्ड सीज कर लिया, पेरेंट्स बुला लिया, बट ये आपको पता है कि वो आप करेंगे तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, राइट? इसी तरीके से रेगुलेटिव एक्ट्स होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप रेगुलेट होता है। इसमें आता है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, सब लिखा है ट्रेड यूनियन क्या कर सकता है वो सही है, क्या तक नहीं कर सकता ट्रेड। ठीक, एक और एक्ट है जो आपको पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, वो बहुत बड़ा एक्ट है, पूरा इंडस्ट्री का सब कुछ का रेगुलेशन है उसमें। आप कब स्ट्राइक कर सकते हैं, कब आपकी स्ट्राइक इलीगल घोषित कर दी जाएगी, अगर आपकी स्ट्राइक इलीगल है तो हम अगर लॉकआउट लगा दें यानी कंपनी में ताला कर दें तो वो सही हो जाएगा। आपको स्ट्राइक पे जाने के कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, ऐसा नहीं कि आप फोन पे बात कर ली और स्ट्राइक कर दी, नो, नॉट लाइक दैट। आपको वो सब कुछ लिखा है कि इतना टाइम में आप स्ट्राइक पे जाएंगे तभी वो स्ट्राइक लीगल होगी। मान लो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मैटर है ऐसा जिसको हम कंसिलिएशन के लिए भेजे, यानी उस पे केस चल रहा है और तुम केस के बीच में ही बोलोगे कि हम स्ट्राइक कर देंगे, दैट इज रॉन्ग। वो लिखा है उसमें कि आप नहीं कर सकते हैं उस बीच में स्ट्राइक, आप उसका फैसला आने तक यू हैव टू होल्ड, और उसके भी 2 महीने बाद आप स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर उस बीच में कर दिए तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीके की चीज है इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इसमें डिसिप्लिन की भी बात है कि क्या चीजें डिसिप्लिन में आती है। ये सब बहुत डिटेल है, व्हेन यू बी गेटिंग दैट एक्ट तब पढ़ना। रेगुलेटिव में समझ में आएगा, रिलेशनशिप रेगुलेट करना। सोशल सिक्योरिटी तो तुम लोगों को पता है, पढ़ा दिए, मोस्टली वेलफेयर के लिए होता है ये चीजें, तो चारों पांचों एक्ट मालूम है इसमें, पता है ना? अभी बताया वेलफेयर एक्ट क्या, वेलफेयर फंड क्या होता है ना कि जहाँ पे कि वर्कर्स बहुत इम्पोवरिश्ड कंडीशंस में काम करते हैं, बहुत पिटिएबल कंडीशंस में, माइका माइंस, कोल माइंस, ये सब जगह पे काम होता है, वहाँ एक वेलफेयर फंड बनता है, उस फंड से जो वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो why I gave you this exposure of labor law is because you need to understand that social security is just a type of labor law. And there is a specific purpose of bringing certain law in certain category. जैसे जब आप रेगुलेटिव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये एक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। क्या ये वेलफेयर के लिए है? नहीं, वो वेलफेयर के लिए नहीं है।
समझ में आई बात? अंडरस्टूड?